Hello and welcome back to a new vlog. So this is definitely the last vlog of the Ramzan vlogs because obviously aaj last sehri hai and there's a lot that you're going to be catching up on in this vlog. One more thing, all the Chand Raat updates will be on my Instagram account because I am going to Commons Karachi, I am going to Ronak Bazaar and I will be exploring and showing you guys all that's happening. So वो सारी ईद फेस्टिविटीज़ के लिए you guys will have to follow me on Instagram which is also by the name of Glossips. अब शुरू करते हैं आज का vlog. Hello, good morning. Getting ready for another work morning. रमज़ान में बस ये आखिरी के दिन होते हैं जो इतने busy होते हैं. I remember someone had commented yesterday on one of my videos asking that how do you manage everything together, and then they named everything like your family relationships, your work, your blogging, Fahad's family, everything. And you know what, I thought hard upon this कि मैंने क्या बोलना है इस बात पे, because it maybe looks like I can manage everything, but you know what, there are days जब मैं किसी एक चीज़ को ज़्यादा importance देती हूँ because उसको ज़्यादा importance देना ज़रूरी होता है. The other thing just doesn't get as much importance naturally. For example, I can just tell you in this way that I don't even get a chance to talk to my family daily. I don't get a chance to talk to Fahad's family daily as well. There are days when I don't even get to go to work पूरे दिन. जिस दिन जो काम हो पाता है उसकी प्रायोरिटी हाई होती है, उस दिन वो काम हो पा रहा होता है. एंड ट्रस्ट मी, टाइम फील्स सो शॉर्ट कि किसी ना किसी दिन कुछ ना कुछ मिस हो ही रहा होता है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट आई डू. बस ये किया है मैंने अपनी लाइफ के साथ एक चेंज, दैट आई हैव स्टॉप्ड प्रेशरिंग माई सेल्फ ओवर इट, बिकॉज व्हेन आई सी लाइफ इन अ होल देन, यानी उसे एक हफ्ते को एनालाइज करूँ या कुछ करूँ, इट फील्स लाइक आई एंडेड अप डूइंग एवरीथिंग. लाइक फैमिली को भी टाइम दिया, आई कुड इवन मैनेज द ब्लॉगिंग बिट, आई कुड इवन टेक केयर ऑफ द वर्क बिट, सब मैंने थोड़ा थोड़ा करके किया. सो in totality it felt like I did all of it, although पहले मैं अपने आप को बहुत स्ट्रेस करती थी इस चीज़ के ऊपर, कि लाइक मैं ये नहीं किया मैंने आज, या वो नहीं किया मैंने आज. एक्चुअली उल्टा क्या हो रहा था कि रोज़ हर चीज़ करने के चक्कर में एक तो वैसे ही टाइम नहीं बचता ही नहीं है, नॉर्मल डेज में भी नहीं बचता, रमज़ान में तो इट्स लाइक पुश. बट जब मैं अपने आप को प्रेशर करती थी ना कि लाइक ओ माई गॉड, आज मैंने फ़लाँ से बात नहीं की, या आज मैंने ये नहीं किया एंड ऑल ऑफ दैट, मैंने इसको फ़ोन नहीं किया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, उन डेज़ पे आई वुड एग्जॉस्ट माई सेल्फ और मेरे अंदर बिल्कुल कोई एनर्जी नहीं बचती थी फॉर एनी थिंग. बंदा ये बोले कि फ़ाहद के साथ टाइम स्पेंड करने की एनर्जी नहीं बचती थी, मी टाइम की एनर्जी नहीं बचती थी. नो भाई, मेरे में किसी चीज़ की एनर्जी नहीं बचती थी, एंड दैट वॉज सो बैड फॉर मी. I stopped doing that to myself. I started being nice to myself and I realized कि ठीक है, मैं इस कम टाइम में सिर्फ जो प्रायोरिटाइज कर सकती हूँ वो प्रायोरिटाइज करूँगी, बट एक मेन प्रायोरिटी ज़रूर है, एंड दैट इज़ मी. I have to give myself time because I cannot pour from an empty cup. I have so many people that I love, that I want to spend time with, that I want to be there for, but it's like it requires energy, and I cannot do that if I myself am not feeling up to it. So I need to make sure that my own cup is filled. That's how I manage everything. Barely. I also feel like I'm not giving myself enough credit. I do not do it barely. I do it. Pretty much I do it. And I ace it. But that's how it feels. Guilt, na? We women are born with guilt. And we can't really give ourselves credit. This is a problem. Anyway, I am decently ready. And good to go. अभी का सीन थोड़ा ये है कि नेक्स्ट लेवल लेजीनेस हो रही है, क्लियरली डाउन ऑन एनर्जीज चल रहे हैं, बट लेट्स सी क्या होता है इसके बाद. ओके, फाइनली बैक होम, एग्जॉस्टेड. आई कुडंट शूट एनीथिंग एट द ऑफिस टुडे बिकॉज बिल्कुल टाइम नहीं मिला, एंड आई वांटेड टू कम बैक होम बिफोर इफ्तार. बाय द वे, आई आल्सो वांटेड टू शो यू गाइस दिस वेरी क्यूट पार्सल दैट केम टू मी फ्रॉम hi-fi.pk. इतना क्यूट ईद प्रेजेंट है एक तरीके से. Look at this basket. It has these beautiful bangles, these jhumkas, different things to eat. यहाँ पर मेहंदी की कोन भी है, henna stickers भी हैं. So sweet. Thank you so much for sending this my way, Hi-Fi. I really did not want to reveal this outfit to you guys because it is my Eid outfit. But सही है ना, so it's fine if I dress up a little bit more. हम जा रहे हैं towards Rocks, which is literally one of the most, like Karachi-ish places in Karachi.
सो हम जाते हैं वहाँ, देखते हैं किस तरह की पिक्चर्स आती हैं, क्या होता है, एंड आई शो दोज टू यू ऑन इंस्टाग्राम. ओके गाइस, सो हम अभी आ गए फॉर द शूट. एज यू नो, इन्फ्लुएंसर शूट्स ज़रा पहले ही हो जाते हैं ईद के. एंड आई मेक यू गाइज मीट अली एज वेल. हाय. Assalamualaikum everyone. वालेकुम सलाम. हाउ आर यू? I'm good, thank you. Finally we are meeting up. या एग्जैक्टली, गुड ना, हमने प्लान भी कर लिया, सब कुछ हो भी रहा है. I'm so excited meeting up with the very famous influencer. So Karachi. sweet. And I'm really excited to be working with a really good photographer जो कि बहुत मजे की वीडियोस और वीडियोग्राफी कर रहे होते हैं. Jazakallah, thank you So very much. आज हम जा रहे हैं, ठीक है, हमारा ये प्लान है to find a good spot somehow before iftar. Let's see how that goes. Just wait. Oh, nice. अच्छा गाइस, काफी हद तक जो शूट है वो हो चुका. हमने 2-3 लोकेशंस बदली हैं. ऑल वी वांटेड टू डू वाज कैच द सन एंड वी ऑलमोस्ट डिड. एक जगह तो इतनी अनएक्सपेक्टेड हमें मिल गई. ओ माय गॉड, लाइक आई लव्ड इट. आई कांट वेट फॉर यू गाइस टू सी दोज एंटायर वीडियोज एंड स्टफ. बट एनीवे, और सॉरी, शूट पूरा. तो खैर ये पूरा सीन है. अभी हम बस जा रहे हैं इफ्तार करने, बिकॉज आई थिंक वी आर लाइक 15 मिनट अवे फ्रॉम इफ्तार. 15 minutes away. So कोई जगह मिल जाए, we're gonna sit, we're gonna eat something. Yeah. कराची को देख के हाँ. हमें ऐसा किसी के मस्जिद के बाहर खानी पड़ेगी. हाँ, क्योंकि everything is like full. कितने हो रहे हैं? बहुत. हाँ भाई, घर में अफ्तार बनती नहीं. नहीं ना, आप लोगों को पता है कि बस लास्ट आउटडोर या खाना खाते हैं यहाँ सारे. अभी तो आजकल सब यही बना रहे हैं, फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं. फूड ब्लॉगिंग, रेस्टोरेंट्स, हर चीज है. देखो यहाँ पे भी लोग बैठ के, ओ माय गॉड, इफ्तारी कर रहे हैं. Guys, the photos came out so bomb. Oh my god. Guys, we are literally back home right in time for iftar. 1 minute पहले है ना. And this is what's happening for iftar today. Although मुझे लगा था आज मेरी इफ्तार शायद बाहर होगी. So here I am right now. अभी भी वही दिन चल रहा है, कोई नया दिन नहीं शुरू हो गया. बट मैंने सोचा कि अपनी जो मेहंदी है ईद की वो मैं आज लगवा लेती हूँ, बिकॉज इसके बाद पता नहीं टाइम मिलता है नहीं मिलता है. बेटर टू नॉट रिस्क इट एंड जस्ट गेट माई मेहंदी डन टुडे. अभी पिंटरेस्ट वगैरह पे देख रही थी और मैं यही सोच रही थी कि हाथ भारी करना है या फिर हल्का करना है. आई हैव नो आइडिया, बट आई एम थिंकिंग कि थोड़ा सा हैवी कर लेते हैं जब कर ही रहे, बिकॉज समवन रियली स्पेशल इज कमिंग टू डू माई मेहंदी टुडे. राइट, सो हियर आई एम एंड दिस इज आफ्टर इफ्तार. आज फुल चांदरा टाइप के माहौल लगे हुए इन द सैलॉन एंड दैट्स व्हाई आई एम ऑल्सो हियर एट नाइट. ट्रस्ट मी, आई लव बीइंग इन माई सैलॉन एट दिस टाइम बिकॉज आई जस्ट फील लाइक दिस इज द बेस्ट टाइम. सबसे ज्यादा मजा आता है. बाय द वे, दिस इज द आउटफिट दैट आई गॉट मेड दैट डे. मुझे बस एक कोजी सा समर फ्रेंडली आउटफिट चाहिए था दैट आई कैन कैरी एट होम एंड आई कैन कैरी एट वर्क एज वेल. ये कुछ ज्यादा ही माशाल्लाह प्यारा बन के आ गया है. इतना समरी, ब्रीदेबल, प्लस द कलर इज ऑल्सो रियली गुड. सो या, अभी के ये सीन्स है. ऑल्सो सेट अप दिस लिटिल काउच एरिया सो दैट मेहंदी जब हम लगाएं तो कुछ गंदा ना हो इर्द गिर्द और सब कवर्ड हो. आई एम लविंग दीज चूड़ियां जो मुझे रौनक बाजार के इनवाइट के साथ आई हूँ. मैंने जैसे ही आई ना मैंने पहन ली बिकॉज दे मैच्ड विद द ड्रेस. एंड बाय द वे, आई एम गोइंग टू रौनक बाजार ऑन संडे, सो आई होप टू सी यू गाइज ओवर देयर. अच्छा, सो कल मैंने इफ्तार के बाद काफी एक लंबा पॉज लिया था. आई डिड नॉट व्लॉग एनीथिंग दैट वाज गोइंग ऑन क्योंकि मेरा मूड इतना खराब हो गया था. मेरे सारे ईद के कपड़े खराब हो गए डिफरेंट स्टाइल्स से, और इतने हद पे जाके खराब हुए ना कि I feel like they're sort of unfixable, and that is when Musk Grandeur came in to save the day, जिनका जोड़ा मैंने आज पहना हुआ था. Man, I would say अब तो मैंने ये खुद try and test कर लिया that designers know what they're doing, because आप दर्जी को कपड़े देते हो, आपको लगता है कि वो उस तरह की चीज बनेगी, नहीं बनती. मैंने तो इस बार खुद करके देख लिया, सब कुछ लाइक मटेरियल लिया, सब कुछ किया, दे के मतलब सिलवाया, सब किया. ना जब मस्क वालों के कपड़े आए एंड द वे दे वर सो नाइसली फिटिंग एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट, आई वाज लाइक सही है ना यार. ऑनेस्टली, आई मीन आई गेट इट कि वैसे लाख रुपए उनके ऊपर स्पेंड करना डजंट मेक एनी सेंस, बट लाइक सस्ते ब्रांड्स भी हैं यार, बहुत अच्छा काम करते हैं. छोटे ब्रांड्स जिनके पास जाओ, ढूंढो उन्हें. तो बस ये केस हुआ, कल मेरा मूड बहुत खराब हो गया था. एंड अल्लाह करे कि आज या कल में जल्दी से मेरे कपड़े आ जाएं एंड देन आई कैन से कि मेरी ईद थोड़ी सी बच गई. मैं अपने साथ ये स्नैक्स भी लेकर आई हूँ आज, जस्ट इन केस आई फील हंग्री एंड आई नीड समथिंग टू ईट. Although नीचे रेस्टोरेंट्स हैं, I can order anything from downstairs, but I still wanted it to be more convenient. Hello. Hi.
So Mehak is over here to do my mehendi today. You guys have no idea. She's so hard to get a hold of, but still, मैंने एक मैसेज किया and she was like, बता दो मेहंदी करानी है. I was like, yes. में थी कि फातिमा मुझे कब मैसेज Thank you. मतलब honestly, thank you. I'm so excited. से मैसेज कर रही हूँ फातिमा I am sorry यार. I am sorry, ये मेरी गलती है. But अभी देखना तुम लोग कैसी मेरी मेहंदी लगेगी. Full bindas. You guys will love it. I'm able to upload this vlog on time. 2 दिन से मैं edit नहीं कर पा रही हूँ because I'm so busy. But I really hope कि मैं time पे upload कर दूँ so you guys can see this happening. बता देना कैसी आ रही है. अच्छा guys, आज एक और आई हैं. One of my other school friends is here. Manur, hi. Hi. इतनी आप क्या मॉडर्न बन के बैठी हुई हैं, इतनी मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड. या सो शी इज ऑल्सो हियर टुडे. शुक्र है जो तुम आ गई. कितने बजे तुमने मुझे कॉल की? I think 10 o'clock. हाँ, शी इज लाइक मैं आ रही हूँ, सलोन खुला है. मैंने कहा आ जाओ बहन जल्दी से. मैं मेहंदी लगवा रही थी, फिर मैंने कहा कि यार अब इसको टाइम देती हूँ, बाहर आके बैठ जाती हूँ. महक, आई होप मैं आपको नहीं ज्यादा इनकन्वीनियंस कर रही. महक, आपको तो नहीं इनकन्वीनियंस हो रही? नहीं. चलो शुक्र. तो तुम्हारे साथ वाली है आपके पास. चलो शुक्र. अच्छा. तो जब मेहंदी कंप्लीट होती है ना फिर मैं दिखाती हूँ बिकॉज क्या कलर आ रहा है और क्या डिजाइन बन रहा है. यू गाइज नीड टू सी दिस आफ्टर इट्स डन. यहाँ पर 3 लोग मिलके मेहंदी लगा रहे हैं लिटरली पाँवों पे बिकॉज इट्स प्रीटी लेट एंड दिस इज महक's टीम एंड दे आर वर्किंग ऑन इट राइट नाउ. Alright guys, finally back home. मेहंदी अभी भी लगी हुई है. I'm going to let this be for as long as possible. लेकिन अब मैं इसका excuse लेके I'm just gonna start editing the vlogs जो इतने टाइम से ऐसे unuploaded पड़े हुए हैं and I'm just going to upload them real quick. The whole room is in a mess because अभी recently ईद के कपड़े भी खराब हुए हैं जिसके चक्कर में सब ऐसे फैल गया है. अब कुछ sort नहीं किया. प्लस काफ़ी सारे ईद के baskets and bites वगैरह चीज़ें भी आई थी. So those are all right here right now. कुछ नहीं कर सकते इसका. सोनू की मेहंदी भी लग चुकी है विच लुक सो प्रिटी. है तुमने रात में बनाई है ना रैंडमली? क्या? अभी पूरा टाइम जो थी ये कर रही थी. हाँ ना, ये कर रही थी ना. हाँ ना, मेहंदी कर रही थी ना. और 3rd डे इन अ रो यहाँ पर कबाड़ा मच गया है वापस से. पता है नाउ आई एम सो टायर्ड. आई डोंट इवन फील लाइक फिक्सिंग दिस. आई एम सो टायर्ड. लेकिन मैं जैसे लिटरली रोज रात को सही करके सोती हूँ. ये आई डोंट हैव इट इन मी टू डू इट टुडे. Yeah, I'll have to sleep with this today. I washed the mehndi off and look at it. कितना प्यारा कलर आया. Oh my god, I love it. पैरों का भी प्यारा कलर आया. So iftar preps are in process as you can see. I do feel incomplete when there's only like 1 fruit or 2 fruits. Watermelon के अलावा that are just kept as you know the source of fruit in an iftari. मेरे लिए a fruit chaat is the real deal. Something that has fruit and something that has toast in it, you know, like bread. So I'm gonna do both those things today. Fruit chaat bhi tayar ho raha hai. We have different sorts of fruit today, like wo apple or banana wale fruits nahi hai. We have oranges and we have everything else. Chiku. I'm just mixing all of them up and making fruit chaat. अब second last इफ्तारी चल रही है literally. तो बस अब egg sandwiches भी बना लें. After this, it's gonna be the end of Ramzan. Literally, ऐसे ही है. Egg sandwiches and fruit chaat are done. Now I'm just going to take a break. And yes, I am not going to be fasting because फिलहाल मुझे इजाज़त है. But anyway, ताक रात है. So I'm just gonna sit over here, grab my dupatta and you know like आराम से बैठ के कुछ तस्बीहां पढ़ूंगी, अपनी रिलैक्स करूंगी क्योंकि सारा काम पहले हो गया which means I still have time to just relax. आज के कुछ different plans भी हैं वैसे बाद में, but that's all after iftar and after isha, तो वो मसला नहीं है. Yeah, but है like full hectic scene on है आज भी. हाँ, what did you get only for me? This is only for you. What is it? White चमचम. I love white चमचम. तुम कसरे शीरिंग से लेके आए हो? हाँ, वो रास्ते में पड़ रही थी. Fahad also got spring rolls and different चीजें. नहीं, ये सब घर का है. सब घर का कौन सा है? Everything else is घर का, सिर्फ स्प्रिंग रोल्स बाहर के हैं. जो है ये हमारे आंगन में उगाया था हमने वाटरमेलन. आज होते होते किसी तरह से ग्रैंड इफ्तारी टाइप हो रही है. वो दिखाए बिस्किट खारे मीठे दोनों, खारे और मीठे दोनों. आज सबकी पार्टी है बेसिकली. अच्छा, फाइनल जो हमारी इफ्तार टेबल आज सेट हुई है ना वो ये है. ऑल ऑफ दीज आइटम्स टुगेदर. तो आज करते करते थोड़ी सी ग्रैंड इफ्तारी हो गई है, बेटर देन द यूजुअल.
Guys, एक चीज बड़ी जोर से हुई आफ्टर आई गॉट मैरिड. आई फेल इन लव विद गुलाब जामुन्स मैन, बिकॉज मेमन्स के घरों में ना दिस इज अ थिंग. खुशी का मौका गुलाब जामुन्स, इकट्ठे बैठे हैं, गैदरिंग है, गुलाब जामुन्स, एंड दे आर सो नाइस. ऑल्सो इनको भी थोड़ी इंपॉर्टेंस दे देते हैं, यू नो. बाकी सारी चीजें आर राइट हियर. आज हमने कॉमन्स भी जाना है. या 9 बजे जाना है ना. 9 बजे जाना है. हाँ, तो अब देखते हैं कि वो किस तरह से होता है. रोजा खोलें जी. लिटरली अभी रात के 3:30 बज रहे हैं, लेकिन मैंने अभी पिछला वाला व्लॉग अपलोड किया है जो आप लोगों ने अभी देखा होगा. एंड अब जाकर मैं ये वाला व्लॉग एडिट करने लगी हूँ. लेकिन मैंने कहा मैं ऐसे आपको बताऊँ तो सही कि ईद के कपड़े जो ख़राब हुए वो क्या ख़राब हुए. सो येस, मैंने फर्शी शलवार बनवाई थी एंड शलवार बहुत अच्छी बनी. अमेजिंग ऑसम शलवार बनी. बट द कमीज सॉर्ट ऑफ गॉट मेस्ड अप, यू नो. लाइक अव्वल नंबर के जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ना, वो सारे हुए हैं. आई होप कि वो नजर ना आए, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू गाइज माई ईद आउटफिट्स ऑन इंस्टाग्राम जब वो टाइम आए एंड एवरीथिंग. तो मैं अभी से नहीं दिखाना चाह रही. क्या पता मैं उनके लुक्स वगैरह पोस्ट करूँ क्लॉसिप्स पे. सो वो कॉन्टेंट अब आगे का ही है एंड आई थिंक दैट यू गाइज विल हैव टू वेट फॉर इट. बाय द वे, आज जो मैंने वो येलो वाला कोट सेट पहना हुआ था ना, दिस इज दैट. सी, दर्जी ने ये कपड़े अच्छे बनाए. जो एक्चुअल में चाहिए थे, जो जिन पे इतना काम की, इतनी मेहनत की, वो सारे खराब हो गए. दर्जी को दिया हुआ है अब कि वो ठीक करके ला के दे ड्रेस किसी तरह से, और जब वो सही हो जाएगा आई शो इट टू यू गाइज. होपफुली इट डज नॉट फिट लाइक एन आंटी फिटिंग, एंड होपफुली इट डज नॉट लुक एज बैड एज इट लुक्ड बिफोर आई सेंट इट बैक. बट येस, उम्मीद यही है कि सब सही हो जाए बाय द एंड ऑफ इट. सो दैट येलो ड्रेस वॉज द वन दैट आई बॉट फ्रॉम कुर्तुबा एंड आई गॉट इट स्टिच्ड. और कुछ नहीं है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट लाइक अ स्लीवलेस कमीज एंड अ ढीला पजामा, दैट इज इट. और वो इतना सुथरा लग रहा था. और ईद के कपड़े इतने बुरे, आंटी फिटिंग, चुस्त, टेट ऑफ, टेढ़े, सब आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स. हार्ट अटैक आ गया था मुझे, ऑलमोस्ट ऐसे पैनिक अटैक, ऐसे मैं रोने लगी थी आंसुओं से. बट एवरीवन वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड फहद वाज लाफिंग एट मी, इसलिए आई डिडंट क्राई. आई हैड टू कीप माई ईगो बूस्टेड. बट वैसे आज बहुत मजा आया विद महानूर, विद महक. मेहंदी देखें कितनी अच्छी लग रही है. अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता सारी झाड़नी शुरू कर दी है एंड द कलर इज एक्चुअली शोइंग अप एंड इट लुक्स सो प्रिटी. आई नेवर थॉट दैट आई विल बी सच अ गर्ली गर्ल व्हेन इट कम्स टू मेहंदी, क्योंकि आयशा मुझसे ज्यादा गर्ली गर्ल थी मेहंदी के चक्कर में. बट नाउ आई फील लाइक आई लव मेहंदी. मैंने पैरों पे भी लगवाई एंड इट लुक्स सो गुड. ओके गाइज, ये है हमारी लास्ट सहरी. सही है, बिकॉज कल इट्स गोइंग टू बी ईद इंशाल्लाह. सोनू की मेहंदी भी लग चुकी है, विच लुक्स सो प्रिटी. तुमने रात में बनाई है ना रैंडमली? क्या? अभी पूरा टाइम जो थी ये कर रही थी. हाँ ना, ये कर रही थी ना. हाँ ना, मेहंदी कर रही थी ना, मेहंदी लगा रही थी. ये हटाओ अपने सामने से गुडनेस ऑफ फाइव. हाँ, स्पेशल आइटम इन टुडेज सहरी. वैसे हाउ डू यू गाइस फील अबाउट रमजान एंडिंग? फास्ट खत्म हो गया, बहुत जल्दी खत्म हो गया, है ना? You know what? It's so bittersweet ending this vlog right now because I literally spent almost all my days catching up with all of you. और मुझे इतना मजा आता है ये करने में because रमजान वो टाइम होता है जब हम आपस में अपना पूरा टाइम जो है वो साथ गुजार पाते हैं. And I literally dedicate this time to you guys कि बस मेरा और आपका टाइम होता है. I try to make it happen as much as it was possible, but this is the end of it. Like this is the last Ramzan vlog that I'm uploading. ईद के व्लॉग्स में अपलोड कर पाती हूँ, नहीं अपलोड कर पाती, आई रियली डोंट नो, बिकॉज यू नो व्लॉग्स बनाना, ये सब चीज़ें रोज एडिट करना, दिस इज प्रिटी एग्जॉस्टिंग. एंड एट दिस पॉइंट आई ऑल्सो जस्ट वॉन्ट टू एंजॉय द रियल चांद रात, जो कि अब मतलब कल होगी विद माई फैमिली. तो अब उन सारी चीज़ों की जो भी पोस्टिंग होगी वो मैं इंस्टाग्राम पे लगा रही होंगी. आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें सो दैट यू कैन गेट ऑल द लाइव अपडेट्स. ईद की भी सारी चीज़ें मैं ज़्यादातर इंस्टा पे लगा रही होती हूँ. इन केस आई एंड अप डूइंग लाइक अ मेकअप ट्यूटोरियल और समथिंग लाइक दैट, तो वो फिर ग्लॉसिप्स के मेन चैनल पे होगा. बट दिस इज इट फॉर राइट नाउ. Had an amazing time with all of you and it's very bittersweet saying bye bye, but I'll catch you guys in my vlogs that are gonna come after Ramzan. Yes, so this is it for this vlog. I hope that you guys enjoyed. If you did, don't forget to give this video a thumbs up and don't forget to subscribe because I'm going to catch you guys later. Bye.